ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی صورت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ستمبر کو ہوگی۔ یکم ربیع الاول 6 ستمبر کو ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی صورت میں عید میلاد النبی 17 ستمبر کو ہوگی۔ یکم ربیع الاول 6 ستمبر کو ہوگی۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ ملتان تعلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 63.52% رہا۔ پوزیشن ہولڈرز کو میڈل سے نوازا گیا۔ انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے اعلان کے لیے بورڈ آفس میں پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ چیئرپرسن بورڈ کمشنر مریم خان، ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم، کنٹرولر امتحانات، سیکرٹری بورڈ سمیت پوزیشن ہولڈرز اور کالجز نے تقریب میں شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات میں کل 79,400 سے زائد طلباء نے حصہ لیا۔ امتحانات میں پاس ہونے والے طلباء کی تعداد 50,490 ہے۔ ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ فرسٹ اینول ایگزامینیشن 2024 کے پوزیشن ہولڈر کو بچوں کی آنر کے اندر آج منعقد کی جا رہی ہے۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی اتحاد گہرائیوں سے اپنے پوزیشن ہولڈر بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑا گروپ پری میڈیکل گروپ ہے۔ اس میں 29,289 کینڈیڈیٹ اپیئر ہوئے، 24,270 پاس ہوئے۔ رزلٹ کا تناسب 82.86% رہا۔ پری انجینئرنگ گروپ میں 5,724 امیدوار اپیئر ہوئے اور 4,363 امیدوار پاس ہوئے۔ 76.22% رزلٹ رہا۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 63.52% رہا۔ گزشتہ سال کی نسبت کامیابی کے تناسب میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ پری میڈیکل گروپ میں کامیابی کا تناسب 82.86%، پری انجینئرنگ گروپ میں 76.22%، جنرل سائنس گروپ میں 53.93% رہا۔ کامرس گروپ میں کامیابی کا تناسب 59.59% رہا۔ میرا نام اقرا فاطمہ ہے اور میری جنرل سائنس گروپ میں اوور آل فرسٹ پوزیشن ہے۔ میرے 1148 مارکس ہیں آؤٹ آف 1200 اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر سرت ملک اور میم وفا عظیم بٹ ہماری پرنسپل ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے میرے والدین، ان کی موٹیویشن ہے اور ان کی دعائیں ہیں۔ میسج یہ دینا چاہوں گی کہ بچوں کو نیچرل پرے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، پیرنٹس کو زیادہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے بچوں کو کہ آپ نمبر لو، یہ کرو وہ کرو۔ وہ جس طرح سے نیچرلی اپنے سرکیڈین ردم کے مطابق پڑھ رہے ہیں ان کو ویسے ہی پڑھنے دینا چاہیے۔ امتحانات میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو شیلڈز اور انعامات پیش کیے گئے، جبکہ پہلی پوزیشن لینے والے طلباء کو لیپ ٹاپ بھی دیے گئے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان بورڈ نے بھی انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ چیئرپرسن ٹاسک فورس برائے پرائز کنٹرول پنجاب سلمہ بٹ نے سینٹر آف ایکسیلنس بوائز اسکول میں منعقدہ تقریب میں نتائج کا اعلان کیا۔ تعلیمی بورڈ ایک بار پھر بازی لے گیا۔ ڈی جی خان بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحان میں 60,102 طلباء و طالبات نے حصہ لیا، جن میں سے 42,341 طلباء و طالبات نے کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 70.45% رہا۔ امتحان میں ٹوٹل 28 پوزیشنز میں سے 15 طالبات لے اڑیں، جبکہ طلباء نے 13 پوزیشنز حاصل کی۔ چیئرپرسن ٹاسک فورس برائے پرائز کنٹرول سلمہ بٹ نے سینٹر آف ایکسیلنس بوائز اسکول میں منعقدہ تقریب کے دوران نتائج کا اعلان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے اور ان کو مبارکباد پیش کی۔ یہ دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 7 سال کے بعد جوڑا۔ آج ہم اپنی سوسائٹی میں ڈی جی خان جو یہاں کی ڈویژن ہے، آپ نے ثابت کیا یہاں پہ آج میڈل لینے والے بچوں نے کہ ڈی جی خان کے بچے ہمارے لیے فخر کی علامت ہیں۔ تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی حنیف خان پتافی، ایڈیشنل کمشنر کریم بخش، اسسٹنٹ کمشنر تیمور عثمان، سیکرٹری ڈی جی خان بورڈ عبدالرحمان، کنٹرولر امتحانات مظفر حسین، ٹیکنیکل آفیشل احمد علی قریشی، طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے بھی شرکت کی۔ رکن صوبائی اسمبلی حنیف خان پتافی کا کہنا تھا کہ ہونہار طلباء و طالبات نے ثابت کیا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ سب سے پہلے میں پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان کے یہ یوتھ، ڈیرہ غازی خان کی یہ نوجوان لڑکے، ڈیرہ غازی خان کی یہ نوجوان بچیاں
बड़े होकर न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। डीजे खान बोर्ड में रूहा अमीर ने 1164 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन अपने नाम की। अजादार हुसैन ने 1159 नंबर लेकर दूसरी, जबकि लारे फातिमा ने 1150 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजे खान। बहावलपुर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने भी 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात बहावलपुर बोर्ड अस्मा कासिम ने नताइज का ऐलान किया। बहावलपुर तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात अस्मा कासिम ने नताइज का ऐलान किया तो तलबा, वालिदैन और उस्ताज़ा खुशी से निहाल नजर आए। सब ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात का कहना था कि वो आज बहुत खुश हैं। मेरा नाम हाफिजा माहीन फातिमा है और मैंने कंकॉर्डिया कॉलेज बहावलपुर से तालीम हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ओवरऑल बोर्ड में पहली पोजीशन आई है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। मेरा नाम फातिमा सदीक है। मैंने बहावलपुर बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की है और मैंने पंजाब कॉलेज चिश्तिया में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और 1154 मार्क्स हासिल किए। इस कामयाबी का सबसे ज़्यादा शुक्र मैं अल्लाह ताला का करना चाहती हूँ और उसके बाद अपने वालिदैन और उस्ताज़ा का नाम, जिनकी दुआओं और जिनकी मेहनत से मैं इस मुकाम पर पहुँची। बोर्ड में पोजीशन लेने वाले तलबा के इदारों के सरबराहान और वालिदैन भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने कहा, मेहनत करवाना हमारा काम था, बच्चों ने हमें बेहतरीन रिजल्ट दिया, हमें इन पर फख्र है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने बहावलपुर बोर्ड में 4 पोजीशन सिक्योर की हैं। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम, अपने तमाम टीचर्स का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम इस पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट में एक भरपूर किरदार अदा करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं हम तालीम के ज़रिए बच्चों के मुस्तकबिल को बहुत बेहतर कर सकें। कि बच्चों ने पोजीशनें हासिल की हैं। एज ए प्रिंसिपल प्रोफेसर अताउर रहमान तमसील आपका और बोर्ड का शुक्रगुजार है और सुपीरियर कॉलेज हासिलपुर के बिहाफ पर तमाम बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहावलपुर बोर्ड के तहत 57,660 उम्मीदवारों ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान दिया, जिनमें से 34,689 तलबा और तालबात ने कामयाबी हासिल की। इस तरह कामयाबी का तनासुब 60.16% रहा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में सीवरेज के नाकिस इंतजामात, अड्डा सादिकाबाद सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया। इलाका मकीन घरों में मैसूर होकर रह गए। मुल्तान वासा इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बाद शहर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। अड्डा सदीकाबाद में कई महीनों से सीवरेज का पानी जमा है। अहले इलाका घरों में मैसूर होकर रह गए। अहले इलाका का कहना है कि सीवरेज के पानी की वजह से रोड टूट चुका है। रात के वक्त चोरी और डकैती की वारदातें होना मामूल बन गया है। क्योंकि इंतजामिया आके हमारा हाल देखे, हमारा हाल पूछे, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे हम इतने मजबूर, इतने तंग हो चुके हैं ना, यहाँ पे ना मस्जिद जा सकते हैं, ना घर से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे सेवरेज नहीं है, जिसकी वजह से ये पानी और इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। अगर सेवरेज होती तो ये मसले ना होते। इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। इलाका में किन्नों का कहना था कि काफी अरसे से यहाँ सीवरेज का पानी जमा है। हालिया बारिशों के पानी की वजह से ये इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इंतजामिया को कई बार दरखास्त दी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। देख सकते हैं कि कितना पानी है पड़ा और बच्चे को स्कूल में पहुंचाने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, बहुत ज़ाया होता है। आंखों का मसला भी आ रहा है, उसके अंदर काफ़ी बीमारियाँ हैं वो भी आ रही हैं। और यहाँ से जो गिलानी साहब आए हैं, बोर्ड लेके गए हैं, तो अभी तक उन्होंने कोई यहाँ पे आके रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज 10 दिन हो गए हैं बारिश का पानी खड़ा यहाँ, हम बहुत तंग हो गए। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से सीवरेज के पानी की निकासी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया में क्राउन फेलियर्स का काम ताखीर का शिकार। क्राउन फेलियर्स को मुकम्मल करने में इंतजामिया ताहाल नाकाम। क्राउन फेलियर के बाद शहरियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। तफसीलात बता रहे हैं सलमान समीर। जी बिल्कुल, इंतजामिया की मुबैना नाअहली जो है वो नज़र आ रही है। मुल्तान में होने वाले कई क्राउन फेलियर्स पर इंतजामिया जो है वो काम करने से कासिर है और अगर कहीं क्राउन फेलियर्स पर काम हो भी रहा है तो वो सुस्त रवि का शिकार है। इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ MDA चौक पर और MDA चौक पर देखा जा सकता है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, मेरे उल्टे हाथ के ऊपर एक क्राउन फेलियर मौजूद है और यहाँ पर काम जो है अब वो सुस्त रवि का शिकार है। इसी की पेश नज़र अगर हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं तो उस हाथ पर भी मेरे एक क्राउन फेलियर जो है वो रूनुमा हो रहा है और इंतजामिया जो है वो सिर्फ बैरियर्स रख कर जो है वो यहाँ से गायब है और ना तो यहाँ पर कोई खातर खा जो है वो एहतियाती तदाबीर के हवाले से कोई बोर्ड चस्पा किया गया है कि ना ही यहाँ पर लाइट का
कोई ऐसा इंतज़ाम किया गया कि लोगों को पता चले कि यहाँ पर ग्राउंड फेलियर रोनुमा हुआ है, जिसके बायस जो है यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे जो है वो यहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो भी ग्राउंड फेलियर में गिर चुका है। और इसी के पेश नज़र इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त की जाती है कि ऐसे हादसा जो हैं वो अमूमन ग्राउंड फेलियर्स की जगह पर हो रहे हैं, तो इंतज़ामिया जो है वो वहाँ पर काम एक तो तेज़ी से करे, दूसरी जानिब वहाँ पर कोई बोर्ड चस्पा किए जाएं और साथ साथ कोई रोशनी का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि रात के औकात में लोगों को ग्राउंड फेलियर जो है वो नज़र नहीं आते और वो मुबैना कोई बड़ा हादसे का बायस बन सकते हैं, जिसके पेश नज़र जो है हुकूमत को और इंतज़ामिया को फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए ग्राउंड फेलियर्स का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करना चाहिए। और उसके साथ साथ आवाम की सेफ्टी के लिए जो है वो यहाँ पर ग्राउंड फेलियर्स के मकाम पर जो है वो लाइट्स का इंतज़ाम वो करना चाहिए। जी शुक्रिया सलमान ज़मीर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आमद से पहले डेरा गाजी खान इंतजामिया मुतहरिक सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। डेरा गाजी खान इंतजामिया की फुर्तियां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की आमद से पहले सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। अरसा दराज से खस्ताहाल मानका किनार रोड पर तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक की रवानी के दौरान भी सड़कों को तामीर किया जा रहा है, सालों का काम मिनटों में हो रहा है। शहरी कहते हैं काम हो चाहे किसी बहाने से ही सही। बनती सड़क को देखकर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। बराबर हो रहा है काम और अब इसका लोको हो रहा है, तो जैसे इसका कंक्रीट मुकम्मल हुआ है तो उसके साथ ही ये अब कंक्रीट जो है मुकम्मल हो जाएगा और काम भी सही हो रहा है। शहरियों का कहना था कि अगर ये काम किसी वीआईपी की आमद के बगैर होते रहें तो आवाम की मुश्किलात काफी हद तक कम हो सकती हैं। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए मुतहरिक। डेरा गाजी खान पहुंचने के बाद रोही से ख़ुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम की कामयाबी और हुसूल तालीम में हायल रुकावटें खत्म करने आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डेरा गाजी खान आमद से कबल वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का डेरा गाजी खान पहुंचने के बाद रोही से गुफ्तगू में कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम की कामयाबी और बच्चों की तालीम में हायल रुकावटें खत्म करने आए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी, जिसके तहत 3 इजला डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को 120 कैलोरी से भरपूर 175 ml दूध का पैकेट रोजाना दिया जाएगा। ऐसे डिफरेंट ट्रेंड्स हैं हर जगह, बट ओवरऑल फीमेल बच्चियां हमारी जो सबसे ज्यादा इनकरेजिंग ट्रेंड है कि वो बच्चों से बहुत आगे हैं। तो अब मेरा ख्याल है जो 10 साल से हम सोच रहे थे फीमेल एजुकेशन, वी शुड कंसिडर कि अब मेल एजुकेशन पीछे जा रही है तो उसे भी पुल अप कर। पार्लियामेंटी सेक्रेटरी बराए हायर एजुकेशन अजमल चांडिया भी इस मौका पर मौजूद थे। रुकने सूबाई असम्बली हनीफ खान पताफी ने कहा कि डेरा गाजी खान में हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए वज़ीर तालीम से दरख्वास्त की थी और अब डेरा गाजी खान में हायर सेकेंडरी स्कूल बनने जा रहा है। इसके साथ साथ डीजी खान यूनिवर्सिटी के मसाइल भी हल होने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा डीजी खान आ रही हैं कि उनका एक बेहतरीन इनिशिएटिव है स्कूल न्यूट्रिशन का, सेहत और तालीम साथ साथ, जिसका आगाज़ कल वो डेरा गाजी खान से कर रहे हैं। डेरा गाजी खान 3 डिस्ट्रिक्ट से इसका आगाज़ हो रहा है, जनूबी पंजाब के डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़, जिसमें 4 लाख से ज़ायद बच्चों को स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को मिल्क भी प्रोवाइड किया जाएगा, तालीम के साथ साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब ख़ुसूसन डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर इजला में प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों की न्यूट्रिशन और तालीमी सरगर्मियों पर निगरानी रखी जाएगी। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस हुकाम कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए सरगर्म। ट्रैफिक पुलिस कानून की दर्जियां बिखेरने वालों को आगाही देने मैदान में आ गई। बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर में कानून की धज्जियां बिखेरने के वाकयात सामने आते हैं, जिसकी वजह से कीमती जानें जाया होती हैं। नौ उम्र बच्चों और उनके वालिदैन को ट्रैफिक रूल्स की आगाही दी जा रही है। रोकना चाहिए, मना करना चाहिए। हम भी उनके चलान करते हैं, बार बार तंबीह करते हैं उनके वालिदैन को भी, इनको मोटरसाइकिल ना चलाने दें ताकि किसी हादसे का बहस न बने। बस हेलमेट का बार बार रोकते हैं, चलान भी करते हैं और चलान कर रहे हैं हम और कोशिश कर रहे हैं कि हेलमेट पहने।
ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना था कि बहावलपुर में बड़ी उम्र के अफराद बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोशिश करते हैं शहरी कानून पर अमल करें, लेकिन लोग मानते नहीं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का मजीद कहना था कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 अफराद हादसात में मारे जाते हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन शाह सकरैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब कंप्लेंट सेल बाबर अलाउद्दीन अवामी शिकायत का असाला करने के लिए सरकराम बाबर अलाउद्दीन का मुल्तान सब्जी मंडी का विजिट। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी हाजी नदीम ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन वजीर आला पंजाब कंप्लेन सेल बाबर अलाउद्दीन मुल्तान पहुंच गए। बाबर अलाउद्दीन ने सब्जी मंडी का दौरा किया और आड़तियों के मसाइल सुने। इनका कहना था कि आड़तियों ने माल की नीलामी के लिए अलहदा जगह का मुतालबा किया है, बहुत जल्द इस मसाइल को हल करेंगे। दोनों तरफ से ताउन करने की जरूरत है, हुकूमत अपना काम करे और यहाँ के जो मुकामी जो हमारे ताजर हैं, जो आड़ती हैं या जो आगे उनके मुलाजमीन काम कर रहे हैं, वो भी ताउन करें। एक तरफा काम नहीं होता और बाहमी ताउन तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन होगी। जहाँ तक गल्ला मंडी का तल्लक है, वहाँ पर इशू थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो पुराना इलाका है, शहर के अंदर इलाका है, सीवरेज वैसे वाकई वहाँ पर इशू है, पुराना सीवरेज हो चुका है, उसकी सफाई के साथ साथ मुरम्मत और रीले करने की जरूरत है। वहाँ पर थोड़ा सा इशू इंक्रोचमेंट का भी है कि जो यहाँ पर इतना नहीं है। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी हाजी नदीम कुरैशी का कहना था कि बाबर अलाउद्दीन ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द मसाइल हल हो जाएंगे। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन को वेलकम कहते हैं सब्जी मंडी में। हमारे जो मसाइल थे वो उनके गोश गुजार हमने कर दिए हैं, तमाम मसाइल उनको बताए हैं और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह वो इस पे फौरी अमल दरामद करवाएंगे और सीएम साहिबा तक भी हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे। सब्जी मंडी के आड़तियों ने चेयरमैन वजीर आला पंजाब कंप्लेन सेल बाबर अलाउद्दीन को सीवरेज के मसाइल बारे आगाह किया और मंडी से तजावुजात के खात्मे का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन हसीब के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में गंदम और कपास के कम रेट की वजह से किसान परेशान। न्यू कला मंडी में वेरानियों के डेरे। सदर अंजुमन आड़तियां न्यू कला मंडी चौधरी नुमान मकसूद कहते हैं मंडी में वेरानी से आड़तियों का बिजनेस मुतासिर हो गया। FBR आड़तियों और बिजनेस कम्युनिटी पर बहुत ज्यादा नाजायज टैक्स आयद कर रहा है। रहीम यार खान की न्यू गल्ला मंडी में वीरानियों के डेरे हैं। मंडी में गंदम और कपास लाने वाले किसान और जिम्मेदार जहां रेट ना मिलने से परेशान दिखाई देते हैं, वहीं आड़तियों को भी कारोबार में मुश्किलात का सामना है। सदर अंजुमन आड़तियां न्यू गल्ला मंडी चौधरी नुमान मकसूद का कहना है कि गल्ला मंडी के इलेक्शन से पहले बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने का वादा किया था। इस वक्त आड़ती बिरादरी को लेन देन के मसाइल का सामना है, जिनको हल करने में मसरूफ है। अजनास, कपास और गंदम का बेहतर रेट न मिलने से किसान के साथ साथ आड़ती भी माली मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली महंगी होने से आड़तियों के अखराजात में इजाफा हो चुका है, मगर आमदन वही है। रही सही कसर हुकूमत ने FBR टैक्सेस में इजाफा करके पूरी कर दी है, जिससे किसानों की आमदन और आड़तियों के कारोबार मुतासिर हो चुके हैं। हुकूमत और इंतजामिया रिलीफ देने के दावों को पूरा नहीं कर सकी। जो अभी सेल करने वाली हैं, हम उनको देख रहे हैं कि उन्हें अच्छे तरीके से जो आड़ती बरादरी है उनको जो है उनको ही जो किया जाए, आड़ती बरादरी को दिया जाए ताकि गल्ला मंडी में भरपूर तरीके से कारोबार हो सके। और हमें जो कोई इशूज़ आ रहे हैं, देखें जैसे ये गंदम का रेट गवर्नमेंट ने 3900 रुपया दिया, फिर बाद में उसकी खरीदो फरोख्त में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आए। गल्ला मंडी की आड़ती बरादरी किसानों को काफ़ी सपोर्ट करती है। सदर अंजुमन आड़तियां न्यू गल्ला मंडी ने कहा है कि हुकूमत आड़तियों पर आयद बेजा टैक्सेस खत्म करे और किसानों और आड़तियों को तरजीही बुनियादों पर रिलीफ दे तो कारोबार बेहतर हो सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बहावलनगर में थाना मदरसे में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SDPO बहावलनगर, SHOs और तफ्तीशी अफसरान मौजूद थे। DPO ने साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। जिले में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अवाम उन्नास को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं, बहावलनगर में थाना मदरसा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SDPO बहावलनगर, SHOs और तफ्तीशी अफसरान मौजूद थे। DPO ने साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी कर दिए। DPO का कहना था कि जिले में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अवाम उन्नास को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया किया जाएगा। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर का खिदमत मरकज़ का दौरा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम और इंचार्ज खिदमत मरकज़ ने ब्रीफिंग दी। खिदमत मराकज़ में एक ही छत तले मुतअद्दिद सहूलियात दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने मौके पर मौजूद साइलिन से मुलाकात की। साइलिन से फराहम करदा सहूलियात के मयार बारे दरियाफ्त किया गया।
सरगोधा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स मुतालिबात के हक में डट के तदरीसी अमल के बाइकआउट को 11 रोज मुकम्मल। डीएचके अस्पताल के ओपीडी में भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सरगोधा मेडिकल कॉलेज के तदरीसी अमले और जेर तरबियत डॉक्टर्स के एहतजाज को 11 रोज मुकम्मल हो गए। पीएमए पंजाब के नायब सदर डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच और दीगर का कहना था कि मेडिकल कॉलेज 2006 में कायम हुआ, लेकिन आज तक इसकी अलग हैसियत को तस्लीम ही नहीं किया गया। इस्लामी फंड और दीगर मुश्किलात के बायस तलबा और डॉक्टर्स परेशान हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पीजी ट्रेनिंग है, अगर ये फैकल्टी नहीं रहती तो पीजी ट्रेनिंग का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं वजीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये मुतालबा करता हूँ सरगोधा की पूरी अवाम की तरफ से, जिस तरह उन्होंने कार्डियोलॉजी यूनिट यहाँ पे दिया है, इसी तरह ये हमारा मसला हल करके ये सरगोधा की आवाम पे एक और एहसान करें। रेजिडेंट्स हैं उनके सुपरवाइजर भी यही फैकल्टी है, जिसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग भी सफर हो रही है, सैलरीज भी लोगों को नहीं मिल रही पिछले 3 महीने से, और उनके मुस्तकबिल का भी किसी को नहीं पता। तो हम बारहा इस सिलसिले में मुख्तलिफ सेक्रेटरी साहबान से, पॉलिटिशियन से और इन सब लोगों से मुज़ाकरात करते आ रहे थे, लेकिन किसी बंदे ने उस पर तवज्जो नहीं दी। डॉक्टर्स का कहना था कि मेडिकल कॉलेज की अलग हैसियत को तस्लीम किया जाए और इंतजाम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के हवाले किया जाए, वरना अस्पताल का ओपीडी और तदरीसी अमल बंद रहेगा। कैमरामैन नासिर शाह के साथ नईम खान, रोही, सरगोधा। रहीम यार खान में वैक्सीन के जरिए बीमारियों से बचाव बारे तरबियती वर्कशॉप। आलमी इदारे सेहत ने वीपीडी वर्कशॉप का एहतमाम किया। शेख ज़ैद अस्पताल के प्रोफेसर और डॉक्टर्स ने वर्कशॉप में शिरकत की। आलमी दायरा सेहत बीमारियों की रोकथाम के लिए सरगर्म रहीम यार खान में WHO के ज़ेर एहतमाम वैक्सीन के जरिए बीमारियों से बचाव बारे तरबियती वर्कशॉप सजाई गई, जिसमें शेख ज़ैद अस्पताल के प्रोफेसर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर समेत दीगर स्टाफ को बीमारियों की तहकीक और जदीद तरीका इलाज से बारे में तरबियत दी गई। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप में डॉक्टर्स को मुतअद्दिद बीमारियों से मुताल्लिक जदीद तहकीकात बारे आगाही मिली है, जिसमें उनको ओरिएंटेशन दी जा रही है ताकि इसका केस रिपोर्ट हो इन टाइम, और इन पेशेंट्स के हवाले से, जो ट्रीटमेंट के हवाले से और जो प्रिवेंशन के हवाले से जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उसके हवाले से ये ट्रेनिंग है। और ये शेख ज़ायद में हो रही है, WHO की तरफ से हो रही है, और इसका मकसद बेसिकली इन बीमारियों से बचाव कराना है। इस वक्त जो यहाँ पे शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान के अंदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ यानी कि वो बीमारियाँ जिनको हम ये जो बच्चों में रूटीन वैक्सीनेशन करते हैं उनसे बचाया जा सकता है, उसके ऊपर एक वर्कशॉप हो रही है, जिसके अंदर इनको जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए आगाही प्रोवाइड की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना था कि बच्चों की जान को खतरा पोलियो, खुनाक और तशन्नुज जैसी बीमारियों से खतरा, इनसे बचाव डॉक्टर और स्टाफ की वजह से ही मुमकिन है। DHO डॉक्टर लियाकत चौहान ने कहा कि अस्पतालों में होने वाली सर्विलेंस रिपोर्ट की मदद से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को बेहतरीन इक़दाम करने में मदद मिलेगी। आज वीपीडी की WHO के ताउन से यहाँ वर्कशॉप हुई थी, जिसमें तमाम वार्ड से और शेख ज़ैद हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स को बुलवाया गया था, हेल्थ वर्कर्स को बुलवाया गया था, ताकि किसी भी किस्म की प्रिवेंटेबल डिजीज़ हो उसको फौरी तौर पे नोटिफाई किया जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जो हैं लोग उसको फौरी तौर पे डिजीज़ की सर्विलेंस कर सकें। तरबियती वर्कशॉप में डॉक्टर्स को मुतअद्दिद बीमारियों की वैक्सीन, नई तहकीकात, वैक्सीन लगाने का तरीकाकार, मिकदार और मुकर्ररा खुराक बारे भी आगाही दी गई और मुकर्ररा खुराक बारे आगाही दी गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोहित, रहीम यार खान।